Good morning, my dear student of class 7. Today we will discuss the chapter number 1 of mathematics. The name of the chapter is integer. So in the last video lecture we have done the introduction of integer, right? We have seen the definition, we have seen the ascending and descending order of the integers on the number line, how to represent the integer onto the number line, right? We have also seen the additive inverse of the integers. Now on the basis of that idea we are going to solve the exercise 1.1, right? So what is the question number 1 of the 1.1? Let's see it. So I have written the question number 1, right? So what it says, following number line shows the temperature in degree Celsius, right? टेम्परेचर की जो मेजरिंग यूनिट जो है दैट इज द डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे। यहाँ पर आपको ऐसा कहा गया है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बताया गया है। As you can see that I have drawn a number line of the temperature where I have written the name of the places, right? Just like you can see Lahul Spiti, right? This is the place where the temperature is shown, that is -8. If you minutely observe the number line, so that is the number line is starting from -10 and you can see the Lahul Spiti, the temperature is -8 degrees Celsius, right? Srinagar, there is another place where you can see the temperature is shown which is exactly -2 degrees Celsius. If you note it down, right? If you see the Shimla, the place Shimla where the temperature is 5 degrees Celsius, and you can see there is another place Ooty where the temperature is 14 degrees Celsius, and at the last you can see Bengaluru, that is in the South India, right? There is the temperature is 22 degrees Celsius is given, right? So आप इस क्वेश्चन को और इस डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एक्सरसाइज मैथमेटिक्स एंड यू हैव टू मेक इट फेयर नोट, राइट? तो इस क्वेश्चन को और इस डायग्राम को बनाने के बाद अब यहाँ पर हमको उसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ ऑल द प्लेसेस, मार्क ऑन इट। सो यू कैन सी दैट देयर आर 5 प्लेसेस आर गिवन, सो आई हैव मेड द कॉलम, राइट? यहाँ पर आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू मेक द कॉलम ऑफ प्लेसेस एंड राइट द नेम ऑफ 5 प्लेसेस which is given in the diagram, and on the right hand side you can make the column of temperature which is in the degree Celsius, and you can observe the number line and write down the temperature which is given on the figure, right? So you can see Lahul Spiti -8 degrees Celsius, Srinagar the temperature is -2 degrees Celsius, Shimla the temperature is 5 degrees Celsius, Ooty and Bengaluru that is 14 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively, right? So this is the question 1 of the question 1. Now we will proceed this question number 1 ahead. Just note it down. I am giving you some time to note it down. तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्वेश्चन बी देखेंगे। इस डायग्राम का दूसरा हमको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस अमंग द अबव। यानी कि यहाँ पर नंबर लाइन पे जो आपको प्लेसेस बताई हैं उसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कूलेस्ट प्लेस जो है, कोल्डेस्ट प्लेस जो है, उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बेंगलुरु जो है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन, सो द टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज द हॉटेस्ट प्लेस। एंड यू कैन सी लाहुल स्पीति, राइट? लाहुल स्पीति इज द कोल्डेस्ट प्लेस। तो हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को निकालेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए जैसे कि आंसर जो आपको लिखना होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस। सो यू कैन सी बेंगलुरु द टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहुल स्पीति, द टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। सो द डिफरेंस इज, इन दोनों के बीच में हमको टेम्परेचर को माइनस करना होगा। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है उसमें से हम जो लाहुल स्पीति का जो टेम्परेचर है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस जब हम करते हैं तो आप देखिए ये माइनस
और ये माइनस हो जाता है प्लस, और 22 में जब हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 30 डिग्री सेल्सियस। इस बात का ये मतलब है कि हॉटेस्ट प्लेस और कूलेस्ट प्लेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। आप इसको आंसर को नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? यू कैन सी द पोजीशन ऑफ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो। सो वी कैन अंडरस्टूड दैट बोथ द टेम्परेचर इज गिवन इनटू द नेगेटिव, राइट। तो हमको यहाँ पर उनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होगा। तो उसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज, लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें से हम -2 डिग्री सेल्सियस को सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। सो इफ वी सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम -8, सो वी विल गेट -6 डिग्री सेल्सियस। सो अल्टीमेटली वी कैन सी दैट -6 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। सो लेट्स जस्ट नोट इट डाउन this answer in your fair notebook. तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर डी करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ है कि अगर हम श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या इन दोनों सिटीज़ के टेम्परेचर को अगर जोड़ दिया जाए, टेकन टुगेदर का मतलब हमको इन दोनों को ऐड करना है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या जो टेम्परेचर होगा वो शिमला से ज़्यादा होगा या कम होगा? ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज, तो हमको यहाँ पर इन दोनों टेम्परेचर को जोड़ना होगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा -2 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, राइट, एंड द 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज ऑफ शिमला। सो वी हैव टू ऐड दिस वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को हम जब जोड़ेंगे सो फाइनली वी विल गेट 3 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो यू कैन सी दैट 3 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला विच इज द 5 डिग्री सेल्सियस। 3 is less than 5, so here we can say that yes it is less than the temperature of Shimla which is 5 degree Celsius. So it is very easy, just understand the language right now. अब यहाँ पर हम देखेंगे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, is it also less than the temperature of Srinagar? ये जो 3 डिग्री सेल्सियस हमको जोड़ने के बाद जो मिला है, क्या ये टेम्परेचर हमारे श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और हमको जो मिलने वाला जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस है। सो ऑब्वियसली वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन -2, तो सिंपली वी कैन राइट नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, राइट। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस, और -2 जो है वो 3 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब आप इसको एज इट इज जिस तरीके से आंसर लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ we will move on to the question number 2. तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसान दिए हुए हैं। टोटल इस एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो हार्ड क्वेश्चंस है उनको मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँ विद द मार्कर, एंड जो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है वो मैं आपको इसकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप उसको अपने घर पर करें, क्योंकि अब आप इंटीजर को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी क्लेवर, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यू दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। सो व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? सो यू कैन लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर।
and negative marks are given in for the incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि जैक नाम का कोई यहाँ पर एक लड़का है और उसने 5 एग्जाम्स को यहाँ पर दिया है, 5 सक्सेसिव राउंड में उस एग्जाम को उसने खत्म किया है। तो यहाँ पर एग्जाम्स के जो रूल है, इसमें रूल में ये कहा गया है कि अगर आपका आंसर करेक्ट है तो उसके लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे, राइट। एंड अगर आपका आंसर रॉन्ग है, आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन आंसर आपका रॉन्ग है, तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 सक्सेसिव राउंड में जो जैक का स्कोर है, पहले राउंड में 25 मार्क्स उसने मिले हैं उसको, दूसरे राउंड में -5 मार्क्स मिले हैं, तीसरे राउंड में -10 मार्क्स, फोर्थ राउंड में 15 मार्क्स एंड फिफ्थ राउंड में 10 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो एट द एंड आपको इस क्वेश्चन में ये करना है, यू हैव टू राइट दिस नंबर्स एंड ऑल द नंबर्स शुड बी एडेड। यहाँ पर आपको सिंपल एडिशन करना है एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर, राइट। सो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही आपको आसान लगा होगा और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि समझाने से आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी और आपको ये पता पड़ेगा कि आपको क्या करना है, राइट। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. At Srinagar, temperature was -5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने नंबर लाइन बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि श्रीनगर जो है दैट इज द नॉर्थ साइड ऑफ अवर इंडिया, सो दैट इज वेरी क्लोज टू द हिमालय, सो देयर इज द टेम्परेचर दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, राइट। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन जो है वहां पर अलग अलग टेम्परेचर नोट डाउन किया गया। तो मंडे को देखा गया वहां पर जो टेम्परेचर था श्रीनगर में -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को यानी ट्यूसडे को जब देखा गया तो टेम्परेचर 2 डिग्री से और कम हो गया। तो 2 डिग्री अगर कम हो जाता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर था -5 वो कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर कम होने के लिए कहा है, सो यू हैव टू मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द -5, राइट, लेफ्ट साइड ऑफ द -5। तो वो जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी -7 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो ट्यूसडे को हमारा जो टेम्परेचर होगा -7 डिग्री सेल्सियस होगा, नॉट -3, सॉरी फॉर द मिस्टेक, -7 डिग्री सेल्सियस होगा। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो उन्होंने पूछा है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर होगा वो -7 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। ऑन वेनसडे, राइट, अब वेनसडे की बात कर रहे हैं, थर्ड डे ऑफ द वीक, वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेनसडे को उन्होंने देखा टेम्परेचर कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ चुका है, राइट। तो बढ़ने के लिए साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस उस वैल्यू में -7 में जोड़ देंगे, राइट। -7 में हम 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेनसडे को टेम्परेचर कितना होगा। तो वेनसडे को टेम्परेचर कितना होगा, सो वी विल ऐड 4 टू -7। तो -7 और 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है -3 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेनसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, राइट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन है ये आपने क्लास 6 में भी किए हैं, इसलिए इनको मैं आपको रिटन में बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ। सो दैट इज जस्ट फॉर योर एक्सरसाइज, जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली डू इट. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर. सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव ऑल्सो द डायग्राम. यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम भी है. यू कैन सी दैट देयर इज द सी लेवल. ये जो आपको लेवल दिख रहा है 0, it is the number line which is drawn, right. So 0, that is the sea level, right, and you can see above the 5000 meter above the sea level there is a plane, right. तो प्लेन यहाँ पर 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सबमरीन है विच इज अंडर द वाटर, राइट. तो सबमरीन जो है वो कितना नीचे है, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है. तो इससे आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं. सो अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level
at the particular point it is exactly above the submarine floating 1200, right? फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलव द सी लेवल। ये जो सबमरीन है वो सी लेवल से 1200 डिग्री 1200 मीटर नीचे है। सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो यहाँ पर आपको बताना है कि एरोप्लेन और सबमरीन में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5000 अबव द सी लेवल यानी कि हम उसको पॉजिटिव वैल्यू काउंट करेंगे, और यहाँ पर 12,000 जो है 1200 जो है इसको हम नेगेटिव में काउंट करेंगे। तो यहां पर हम दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए 5000 और 1200 को ऐड कर देंगे। सो फाइनली वी विल गेट, कितना मिल जाएगा हमको, 6200। 5000 और 1200 को अगर हम जोड़ देंगे तो 6200 मीटर दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा, राइट? दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक। मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपए जमा किए, राइट? तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है। पहला जो आपका पुराना जो अकाउंट था, जिसमें आपके अकाउंट में जितना बैलेंस था उसमें आपने 2000 और डाल दिए, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, राइट? इसीलिए हम इसको पॉजिटिव वैल्यू काउंट करेंगे, राइट? एंड विड्रॉज, उसने कुछ पैसे भी निकाले हैं। कितना पैसा निकाला है, 1642 रुपीज उसने वहां से क्या किया है, विड्रॉ किया। विड्रॉ करने का मतलब पैसा निकालना, राइट? नेक्स्ट डे, पहले दिन उसने 2000 जमा किया और अगले दिन उसने 1642 निकाल लिया। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, यहां पर ये जो वैल्यू दिख रही है, क्योंकि ये पैसा हमने बैंक में से विड्रॉ किया है तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, राइट? तो यहां पर अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस अमाउंट इनटू द पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म, राइट? अब फाइनली हमसे यहां पर क्या पूछा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो आपको यह बताना है कि विड्रॉल करने के बाद, यानी इतना पैसा विड्रॉल करने के बाद मोहन के अकाउंट में कितना पैसा अब बाकी है, राइट? तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2000 में से इस अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी फाइनली आपकी वैल्यू होगी, राइट, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे ही ओरली इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें, सो 10 - 2 कर देंगे हम यहाँ पर, तो 10 - 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पर हमको करना होगा 10 - 5, या हम बोल सकते हैं 9 - 4, तो 9 - 4 जो होगा वो हो जाएगा आपका 5, राइट? और यहाँ पर आपको 20 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर 19 हो जाएगा, तो 19 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो 3, तो फाइनली आपका जो अमाउंट होगा वो 358 रुपीज जो है आपके अकाउंट में, यानी मोहन के अकाउंट में बचेगा, राइट फ्रेंड्स? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप घर पे भी कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए एक होमवर्क भी दे रहा हूं और आपको मैंने समझा दिया कैसे करना है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड पर समझेंगे। अब हम ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, वहां पर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट फ्रेंड्स? तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए और इनको करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें एक लड़की है जिसका नाम है रीटा, और यहाँ पर एक लाइन आपको बना के दी है। इस लाइन को आप नंबर लाइन मान सकते हैं। दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन एंड इट इज द ईस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि ये जो पोजीशन ए दिख रही है, यहाँ पर शुरुआत में रीटा खड़ी है। सपोज रीटा इज एट द पोजिशन ऑफ ए, राइट? तो रीटा जो है वो पहले 20 किलोमीटर ए से 20 किलोमीटर बी तक ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, राइट? समझ में आई बात? ए पोजीशन पे रीटा जो है वो खड़ी है और ए पोजीशन से वो ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, और वो कितना ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर अप टू द पॉइंट बी, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर जब रीटा ए से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द +20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रीटा बी पोजीशन से
लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। तो वेस्ट डायरेक्शन में जब वो चलना शुरू करती है तो वो कितना किलोमीटर चलती है? 30 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट अलोंग द सेम रोड। इस सेम रोड पे वो 20 पोजीशन से 30 किलोमीटर तक चलती है। तो सपोज मान लीजिए इस पोजीशन पे आके वो रुक जाती है, जहाँ पर मैं फिंगर बता रहा हूँ दैट इज द पोजीशन सी। इस पोजीशन पे वो आके रुकती है। सो बी से लेके सी तक की जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट is represented by the positive integer, then how will you represent the distance traveled toward the west? ऐसा कहा गया है कि अगर रीटा ए पोजीशन से ईस्ट के तरफ जब मूव करती है तो उस वैल्यू को, उस किलोमीटर्स को यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर रीटा बी पोजीशन से लेफ्ट के तरफ यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर मूव करती है तो उस वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर उस वैल्यू को हम नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को सिर्फ समझ रहे हैं, इसका पूरा आंसर जो है मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, राइट? तो अगर यहाँ पर ईस्ट को हम पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट की तरफ अगर वो मूव करती है तो हम उसको नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? अब फाइनली आपसे क्या पूछा है? बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन ऑफ ए। तो अब हमको यह बताना है कि रीटा की जो फाइनल पोजीशन है वो शुरुआत की पोजीशन से कितने दूरी पर है या किस डायरेक्शन में है, ये आपको यहां पर बताना है। तो आई होप फ्रेंड कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। नाउ वी विल मूव टू द व्हाइट बोर्ड, राइट? तो बच्चों जो क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टर पे समझा था अब हम उसका आंसर यहाँ पर बोर्ड पे देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा इसका आंसर लिख के रखा हुआ है। तो सिर्फ अब आपको इसको समझने की ज़रूरत है। हमसे पूछा गया था कि अगर रीटा इस डायरेक्शन में मूव करती है 20 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में बताते हैं। अगर रीटा वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है तो उस वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो उसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। सबसे पहले तो हमको ये स्टेटमेंट लिखना है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। यहां पर हमने देखा था कि ए से लेके बी तक 20 किलोमीटर मूव करती है, दैट इज इनटू द ईस्ट डायरेक्शन, और फिर बी से लेके 30 किलोमीटर यानी कि सी पोजीशन तक। सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा दैट इज ऑन टू द वेस्ट डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पर टोटल जो रीटा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बी से लेके सी तक दैट इज इक्वल टू द 30 किलोमीटर। So we can make the equation. So first of all we can write the final position of Rita is C, right? Final position जो है रीटा की वो C है, और ये जो C है that is not into the east direction, that is into the west direction. We are concerning in the point ओरिजिन पॉइंट ऑफ द रीटा, यानी कि जहां पर पहले रीटा खड़ी थी अब जो फाइनल पोजीशन है वो उसके। So students, after understanding the question and the final position of Rita, we can make the equation BC as equal to CA plus AB, right? So what is BC? BC is the distance traveled by the Rita in the west direction. So BC को निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, CA plus AB को प्लस करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। So 10 plus 20 that is BC is equal to 30 किलोमीटर सॉरी। एंड देन हमको यहाँ पर एग्जैक्टली क्या निकालना है, फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा, सो दैट इज CA, राइट? तो CA को निकालने के लिए हम इस BC में से AB को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो BC माइनस AB दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। सो BC इज 30 किलोमीटर एंड AB दैट इज 20 किलोमीटर। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू एंड वी विल गेट CA दैट इज 10 किलोमीटर एंड देयरफॉर वी कैन राइट हेंस रीटा इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यानी उसकी जो शुरुआती जो पोजीशन थी जहां पर पहले वो खड़ी थी वहां से अब वो 10 किलोमीटर वेस्ट में खड़ी है, दैट इज द फाइनल पोजीशन। सो
हमने यहाँ देखा कि जो वैल्यू हम ईस्ट में मेजर कर रहे थे उसको हम पॉजिटिव मेजर कर रहे थे, हम उसको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर हमने देखा। वैसे ही अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर कोई वैल्यू वेस्ट डायरेक्शन में, अगर रीटा वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हमको नेगेटिव वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो 10 किलोमीटर है इट इज रिप्रेजेंटेड एज -10, राइट। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को -10 के तौर पे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना आसान था और हमको इस तरीके से उसका हम आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त काफ़ी हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब हम इस एक्सरसाइज के जो बाकी के जो 4 बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।